Introduction of Article 239AA in the Constitution, Parliament envisaged a representative form of government for Delhi while seeking to provide a directly elected legislative assembly with legislative powers over matters within the state list and the concurrent states barring those exempted. कल हमारा सदन में जब परसों ये चर्चा होते समय हमें जब विरोध करना जरूरी महसूस किया तो हमारे कोई नेता, ज्ञानी नेता यहाँ उठ के कह रहे थे कि हमारे एरुडाइट हम लोग नहीं हैं, ये कानून नहीं समझते, मानते हैं उन जैसा फ्लैम्बॉयंट लीगल लुमिनरी मैं कम से कम नहीं हूँ, ये बिल्कुल मानता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो भी हमारे पास है। वो ये था कि ये आपने माना कि verdict itself had noted that since there is no central legislation governing the services and the decision-making process in Delhi, the power would lie with the elected government. ये आपका तर्क है। आपका दूसरी तर्क ये है, the center has removed the basis and reason on which the judgment was given. The Supreme Court decision on the interpretation of Article 239AA, entry 41 in the absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services seemed to be an acknowledgement of the Supreme Court as the superior authority of Parliament to make laws for national capital. ये आपका तर्क यही है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल आपका तर्क सही है, लेकिन ये भी सही है कि review petition filed by the center in the Supreme Court claimed that Delhi is not a full-fledged state, but only a union territory which is an extension of the union. आपको सुविधा ये मैं बता रहा हूँ। The Parliament is Delhi's true legislation. ये भी अपने कहते हैं, true legislation. ये भी अपने कहते हैं. The center has argued. However, the May 11 judgment addresses the contention by acknowledging that though Delhi is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the state list and concurrent list. आपके यहाँ बहुत बड़े-बड़े वकील बैठे हुए हैं, हमारा रविशंकर प्रसाद जी वो भी है, आप खुद आप देख लीजिए। द यूनानिमस जजमेंट, मैं एक बड़े मेन स्ट्रीम पेपर से मैं ये उद्धृत करते हैं। द यूनानिमस जजमेंट हेल्ड दैट दो दिल्ली इज नॉट ए स्टेट under the first schedule to the constitution, it is conferred with power to legislate upon subject to give effect to the aspiration of the people of NCTD. It has a democratically elected government which is accountable to the people of the NCTD. Under the constitution scheme envisaged in Article 239AA Clause 3, NCTD was given legislative power which, though limited in many aspects, is similar to states. In the sense, with the addition of Article 239AA, the Constitution created an asymmetric federal model with the Union of India at the center and the NCTD at the regional level. सर, हमें ये कहना है, जब चुनकर नुमाइंदे आते हैं, चुनकर जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, तो क्या उनका लेजिस्लेट करने के अधिकार नहीं दिया जाएगा? सब छीन लिया जाएगा? बचपन से सुन के आते हैं कि चोर कतवाल को डांटे। यहाँ तो लगते हैं कि चोर सिर्फ कतवाल का नहीं, कलेक्टर को हुक्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म करते हुए ये ब्यूरोक्रेट्स पे सारे जिम्मेदारी, सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स पे सौंपा जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स फैसला करेगा सरकार कैसे चलेगी। ये क्या सही होगा देश के लिए? हमें सर, जहां आपको गलत लगे छांट दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा कि कहावत की तरह, ये कहावत है, मैं अपनी बात नहीं। द कोर्ट had held that the executive power of the Delhi government was coextensive with its legislative power. That is, the executive arm of the government covers all the subjects, including services except public order, police, land, for which the legislative arm can make laws. आप ये कह सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट उससे भी शक्तिशाली है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन इसमें और एक बात है
ये मैं नहीं कह रहे, ये डॉक्टर PDT आचार्य साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वो कह रहे क्या जानते हैं? When we analyze the key provision of this ordinance in terms of Article 239AA as well as GNCTD Act 1991, it will be found to not be in conformity with the Constitution. Article 239AA Clause 7 empowers Parliament to make a law to supplement the provisions contained in that article. मानते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होते हैं? To supplement the provision does not mean making contrary provision. Parliament has not given any power in this article to make a law conferring all powers on the Lieutenant Governor with respect to the administration of the territory of Delhi. हमारा आपत्ति है, ये कानूनी आपत्ति है सर। ये हम कोई मनगढ़ंत आपत्ति नहीं करते, कोई अलायंस के चलते ये कोई दूसरी वजह से। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर इसमें बड़ा संगीन हालत में गुजर सकते, इसलिए हम पहले ही चेतावनी देना चाहते हैं। आप यहाँ कहते हैं कि हम ये क्या बनाएंगे, एक नया एक ढांचा बनाएंगे NCCA से। क्या होगा उसमें? उसमें जो चीफ मिनिस्टर रहेगी उनकी बात नहीं चलेगा, जो सेक्रेटरी वो फैसला करेगी, और सेक्रेटरी अगर चाहे तो चीफ मिनिस्टर की कोई सिद्धांत पे वो वेटो भी दे सकते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी ये क्या करते हैं? चीफ सेक्रेटरी वुड रिप्रेजेंट द विल ऑफ द ऑफिसर ऑफ द GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट had envisaged a neutral civil service carrying out the day-to-day decision of the Council of Ministers. The NCCA attempts to bring civil service officers out of the administrative control of the elected ministers who embody the will of the people and transform them into power lobby. हमारा यही कहना है कि सारे क्षमता अगर ब्यूरोक्रेट पे छोड़ देंगे आप, तो हमें चुनकर यहाँ आने की क्या जरूरत है? ये ट्रिपल कमांड, हमारे जो ट्रिपल कमांड जो चलते हैं, एक बार जनता हमें चुनते हैं, चुनने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ हम लोग आम लोगों के लिए हमारी जिम्मेवारी दिखाते हैं। अकाउंटेबिलिटी आम लोगों के समीप हमें रखना पड़ते। ये जो ट्रिपल चेन जो कमांड है, ये ट्रिपल चेन कमांड हमारी देश की बुनियादी ढांचे के लिए एक अहम हिस्सा होते हैं। अब इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी आपके विरोध या खड़ा होने पड़ते। सर हो गया सर। और एक बात है सर, ये सर देखिए, ये और एक बात है, देयर इज येट अनदर प्रोविजन, ये 45J Clause 4 which introduces a new procedure for summoning and proroguing a session of the assembly. Under the present constitutional system, the decision to convene a session of the legislature is taken by the cabinet. यहाँ भी ऐसा होते हैं, आप फैसला करते हैं कब सदन चलेगा या नहीं। Thereafter it is conveyed to the governor. आप क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को भेजते हैं। यहाँ गवर्नर को भेजा जाते थे पहले, who signed the summons. This is the practice followed in all countries where the parliamentary system of government exists. But a strange and inscrutable procedure has been introduced by this ordinance. Under this new procedure, the proposal for convening the assembly shall be submitted to the chief secretary, to the lieutenant governor and the chief minister for their opinion before issuing the summons. आपने कभी ऐसा मानेंगे यहाँ? अगर हम नहीं तय करेंगे या हमारे नौकर साहब ने तय करेंगे, ये हम मानेंगे? अब बताइए। दिल्ली में बहुत सारे सेवा ये सूबे की सरकार देते थे, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हर सूबे की सरकार की अपने अपने क्षेत्र में कोई सेवा देना जरूरी होते हैं। जैसे कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले 50 से अधिक संस्थाएं इस एक व्यापक प्रावधान से प्रभावित होंगे इस ऑर्डिनेंस के चलते। इनका नियंत्रण दिल्ली के लोगों से लेकर केंद्र के पास चले जाएगा। ये संस्थाएं दिल्ली के यातायात, परिवहन, जल और बिजली आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्र में काम करती है, जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली वुमेन कमीशन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड सहित कोई महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल है। इन सभी संस्थाओं के विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मतदाताओं के जरूरत के पूरा करने के लिए गठित किया गया है, और यह दिल्ली का जनता की रोजमर्रा की जीवन की प्रभावित करती है। इस संस्थाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। सिविल सर्विस के बाद ये संस्थाएं दिल्ली में प्रशासनिक कार्य करते हैं और प्रशासन का केंद्र है। इस प्रावधान के तहत सबसे बड़ी मनमानी ये की गई है कि इन सभी संस्थाओं के लिए
बजट दिल्ली विधानसभा और दिल्ली से पारित किया जाएगा, मगर इनमें नियुक्तियां केंद्रीय राजनीतिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो ये मनमानी तरीके से इस तरीके की बिल मत लाया करो, एक ब्यूरोक्रेट पे सारे जिम्मेवारी मत छोड़ो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। ये चेक्स एंड बैलेंस को मत तोड़ो। अगर चेक्स एंड बैलेंस टूट जाएगा तो हिंदुस्तान नामक जो देश है इसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगी। इसलिए कहते हैं आप भगवान आपको ज्यादा ज्ञान दे, आपको ज्यादा बुद्धि दे और ये आप प्रत्याहार करें।